Hello everyone, welcome back to BBVN online classes. Now we are continuing with our exercise 3.3 and question number 5. हालांकि हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि सर 5th क्वेश्चन दोबारा करना, उसका ऑर्डर हमें समझ नहीं आया. Let's see. The solution is that क्वेश्चन क्या था? For the matrices A and B, आपके पास कोई दो matrices हैं. Verify that this is the property. The transpose of AB is equal to B transpose dot A transpose, where the given matrices are A and B, right? Solution ये कहते हैं कि आपके पास A और B तो हैं, आपके पास A और B तो हैं ऑलरेडी, तो इसको वेरीफाई करने के लिए पहले आप A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज निकाल लो. आप A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज निकाल लो. तो पहले सर मैं अगर A ट्रांसपोज करूं तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है बेटा 3/1 और इसका ऑर्डर क्या है 1/3. तो 3/1 ऑर्डर का जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो 1/3 यानी कि 1 रो एंड 3 कॉलम्स. दिस 1 कॉलम चेंजेस टू 1 रो, तो ये 1 -4 एंड दिस इज 3. दिस इज व्हाट A ट्रांसपोज. एंड व्हाट इज B ट्रांसपोज? द ट्रांसपोज ऑफ दिस 1/3 after obtaining its changing its row and column, the order will be what 3/1. Then this one row changes to itself in one column, and the transpose of B is what -1, 2 and 1. Now what the proof and part? This is the proof part. मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूं. अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूं, वो कहती है कि आप सर AB का ट्रांसपोज कीजिए. आप किसका ट्रांसपोज कीजिए? AB का. तो AB क्या है? A सर मैट्रिक्स मेरे को दी है 1 -4 3 dot B. B is the second matrix -1 2 and 1. The order of first matrix is 3/1 and the order of second matrix is 1/3. Matrix multiply is possible if and only if number of columns in first row is equal to number of row in second matrix. Number of column in first matrix is equal to number of row in second matrix. Then the order of the resulting matrix is what? 3/3. The order of the resulting matrix is what? 3/3. Now we multiply row by column. देखिए R1C1 gives the first element. What is A11? है ना? देखिए R1C1 gives the first element A11. R1C2 gives the second element of first row, and R1C3 gives the first element and first element of the first row and third column. तो देखिए R1C1, this is R1 ना, this is R1, this is R2 and this is R3. This is C1, this is C2 and this is C3, right? R1C1 1 -1 -1 1 -1 -1 gives the first element of the first row A11. R1C2 gives the first row second element 1 2. This is 2. R1C3, this is R1, this is C3, gives the first row third column 1 1 1. Okay. Now I change the row. R1 will change to R2. R1 को किससे चेंज कर दिया मैंने? R2 से. तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट 821. इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा 822 और इसका क्या हो जाएगा बेटा 823. तो बोला सर R2 is what -4. तो -4 -1 +4 -4 +2 -8 -4 +1 -4. R2 is multiplies C1. R2 C1 A21. R2 C2 A22. R2 C3 A23. -4 -1 +4 -4 2 -8 and -4 1 -4. Now again we change the row and this is what the remaining row, that is R3. Then order of the element is also changed and this is in R3, the third row. R3C1 R3, this is C1 3 -1 -3. R3C2 3 2s are 6. R3C3 gives the third element and this is the order of the required matrix 3/3. Now this is the left hand part. अब क्या करना है? हमें इस AB का
हमें इस ए बी का क्या करना था बेटा, ट्रांसपोज करना अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ये तो क्या था आपका ए बी था ना, इसका ट्रांसपोज करना आपको, तो इसका ट्रांसपोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन ट्रांसपोज, चेंज इट्स रो इनटू कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 by 3 रहना आपका, change its row into column, the first row become first column, first row -1 2 and 1, ये first row थी, first column, second row second column and third row third column. This is the value of AB and its transpose. This is our left hand side, this is our left hand side. Now what is the case on the second right hand side part? दोस्तों राइट हैंड साइड पार्ट कहता है आपको कि आप B ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज कीजिए। इट मींस द B ट्रांसपोज इज -1 2 1 into A transpose 1 -4 1 -4 and 3. The order of this matrix is what? Again 3 by 1 and the order of this 1 by 3. You can see that -1 ये आपके पास आ गया। अब number of columns is equal to what? Number of row. It means matrix multiply will be possible and the order of the required matrix is what? 3 by 3. Again we multiply, right? देखिए first row first column, first row second column, first row third column, तो माइनस जो 1 है ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 की 1 से करूंगा बेटा -1, -1 की -4 से करूंगा +4, -1 की 3 से करूंगा -3, फिर मैं 2 की इन तीनों से करूंगा, 2 1 जा 2, 2 -4 -8 and 2 3 जा 6, 1 सबको मल्टीप्लाई करेगा तो 1 -4 3. This is your right hand side, this is your right hand side and you can see that the left hand side and the right hand side, the first row -4 -1 4 3 -1 4 -3, 2 -8 6 2 -8 6 और 1 -4 3 1 -4 3. It means the transpose of AB is always equal to B transpose if A transpose, if your data are right. This is the way to solve out such type of the questions in which we have to prove AB transpose that equals to always B transpose dot A transpose. It means B transpose A transpose. We have the given matrices are these. तो बेटा इसका सेकंड पार्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है आपका वो सेम एज इट इज इसी पे डिपेंडिंग है, उसमें ए मैट्रिक्स भी दिया आपको, बी मैट्रिक्स दिया, ऑर्डर वही है आपका, सेम एज इट इज, बस डिजिट्स चेंज हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट, डू योरसेल्फ, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं बेटा आपके पास हमने कोई ए मैट्रिक्स दी है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, then verify that the transpose of A dot A is equal to identity matrix। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि जो ट्रांसपोज होगा A का वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो look at that, please open your book, open your PDF format of book and see the question। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और उसको समझिए। एक बार आप क्वेश्चन को खुद समझ के सोल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, उससे पहले आप समझे उसको। समझने का मतलब आप देखें कि वास्तव में क्या क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हमें आता है या नहीं आता, उससे पहले आप क्वेश्चन को खुद सोल्व करें, उसके बाद आप देखिए। क्वेश्चन 6 कहता है कि अगर हम आपको ए कोई मैट्रिक्स इस तरह की दे दें, किस तरह की, कोस अल्फा हो, साइन अल्फा हो, माइनस साइन अल्फा हो और क्या हो बेटा, अगेन कोस अल्फा हो। दिस इज द रिक्वायर्ड गिवन मैट्रिक्स ए, देन वेरीफाई दैट व्हाट ए ट्रांसपोज डॉट ए इज इक्वल टू व्हाट, identity matrix is what, identity matrix। so simply the solution is that, solution ये कहता है सर आपके देखो तुरंत दिमाग में आएगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ट्रांसपोज करूंगा ए का और फिर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इजीली मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई पॉसिबल है, लेकिन हाउ वी गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लुक एट द बोर्ड प्लीज। ए ट्रांसपोज इज व्हाट, चेंज इट्स रो टू इट्स कॉलम, द फर्स्ट रो cos alpha and sin alpha, what is the second row, minus sin alpha and this is cos alpha। अब आपको बता दूं 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में हमेशा जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो बेटा फिक्स रहते हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो माइनस के साइन के साथ चेंज हो जाते हैं। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, वो माइनस के साइन के साथ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मींस या फिर आप ये कहें वो माइनस के केस में था, अगर पॉजिटिव होते, बोला सर ये पॉजिटिव होता तो
तो ये आपस में चेंज हो गए। इसका मतलब ये फिक्स रहते हैं और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं इन केस ऑफ 2/2 order. In case of the 2/2 order, the non-diagonal element will change to itself, but the diagonal elements are same when we getting the transpose of a 2/2 order matrix. Now this is the A transpose. Now first row, first column, second column. Now according to question क्या कहता है कि A transpose dot A equals to, you have to prove the identity matrix. तो वैसे identity matrix इसी ऑर्डर की आएगी ना, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे 2/2 तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो आएगी ये वाली, ये भी एक मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर क्या रहेगा बेटा 2/2, तो उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। दिस इज द, ये आपको प्रूव करना है, करते हैं। लेट्स सी A ट्रांसपोज cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड दिस इज cos अल्फा। दिस इज A ट्रांसपोज इनटू A फिर से वही cos अल्फा sin अल्फा एंड दिस इज माइनस sin अल्फा and this is cos alpha. All are the given matrices will be the square matrix, that's why the matrix multiply is possible. Order will be same because 2/2 then the required matrix is also of 2/2 order. Then we get the multiply by this order. Cos alpha cos square alpha and minus sin alpha minus आप ये है, देखिए ना क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज R1 दिस इज C1 gives the first element, तो cos square अल्फा, ये माइनस का sin अल्फा बेटा, तो माइनस प्लस sin अल्फा तो हो जाएगा बेटा sin square अल्फा। प्रोडक्ट करें ना, cos square sin square माइनस is what plus, this R1 this C1 gives the first element, R1 C2 cos alpha sin alpha, right, cos alpha sin alpha, this is minus this is plus, minus sin alpha cos alpha, right, this is sin alpha cos alpha and this is of minus sin alpha and cos alpha, this is sin alpha sin square alpha and this is cos alpha cos square alpha, this is your left hand side part, right। क्या करेंगे सर, आपने क्या किया, R1 को C1 C2 से मल्टीप्लाई किया और R2 को C1 C2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस। नाउ यू कैन सी दैट cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha both are cancelled, this also cancel, this is remaining 0 and this is remaining 0। आपने ट्रिग्नोमेट्री में इजीली पढ़ा है sin square plus cos square is what 1 and this is what 1, then you can find that 1 0 0 1 1 0 0 1 and this is the required matrix और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। this is our right hand side part, right। the second part of question number 6, this is your first part ना। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है कि हम आपको फिर से एक मैट्रिक्स दे रहे हैं और आपको वही प्रूव करवा रहे हैं, ये वाला है ना, तो डू योरसेल्फ। जो 6 का सेकंड पार्ट है आप उसको खुद कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा इस पे डिपेंड करते हैं कि आपको नॉर्मली क्वेश्चन आने चाहिए ट्रांसपोज के डिपेंड पे, और उनके ट्रांसपोज को डिपेंड करते हैं जितनी भी थ्योरम्स है या फिर जो कुछ रिजल्ट्स है उनको यूज करने हैं आपको प्रॉपर्ली आप यूज करेंगे, इजी है, कोई ज्यादा इसमें हार्ड वाला कोई ऐसा सिस्टम है भी नहीं। जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा। देखेंगे बोर्ड पे वीडियो देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, आपको सब इजी लगेगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करेंगे यू कांट सॉल्व एनीथिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। में बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये कहता है शो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। The definition of a symmetric matrix is what? When we getting the transpose of a matrix, when we getting the transpose of a matrix and the transpose is the same matrix, the transpose of a matrix itself, the transpose of a matrix itself, then the matrix is symmetric. And in case the transpose of a matrix is negative of itself, then it is the case of a skew symmetric matrix. Right? क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप उसमें पूछ सकते हो। क्वेरी होने क्या है, आपको ट्रांसपोज करना है, नॉर्मल क्या करना है, ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट। सिंपल सा मैंने कल आपको एक थ्योरम प्रूव करवाई थी, उसमें आपको बताया था मैंने, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज विद रियल एंट्रीज। एक थ्योरम बताया था ना आपको, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज A plus A transpose is always symmetric and A minus A transpose is always skew symmetric। ये भी हमने आपको सोल्व करवाया था। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको A मैट्रिक्स दी है इजीली 2/2 ऑर्डर की, और वो क्या दी है आपको 1 5 and 6 7 and you have to verify that
A plus A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड A minus A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। मुझे नहीं लगता कि आप ये नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब डजंट अंडरस्टैंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब अब तक आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं आया है तो आप उसको सीखें, देन डू इट। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन डू योरसेल्फ। एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये मैं थोड़ा सा आपको करवाता हूं, हालांकि मैंने इस पे थोड़ा आपको बताई थी। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर is always expressed or expressible as the sum of a symmetric and a symmetric matrix. Let A be a square matrix, then how we can write it? Half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose. This is the theorem. According to theorem, we can write any square matrix can be expressible as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix, because we have already proved that A plus A transpose for any square matrix with the real entries is always symmetric and this is skew symmetric, and the sum of the both symmetric and skew symmetric matrix give the same result and that is A. So let's see the question number 9. उससे पहले आप उसको थोड़ा सा पढ़ें, उसको देखें और उस थ्योरम को याद करें जो इस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। जो सबसे लास्ट थ्योरम बेटा आपको लिखवाई थी, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, सभी बुक्स में है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ आपको यही पूछा है कि अगर हम आपको कोई ए मैट्रिक्स दे दें जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो किस ऑर्डर की है बेटा, वो है आपकी 3/3 ऑर्डर की, और मैट्रिक्स क्या है 0 A B minus A 0 C and this is minus B minus C and this is 0, then find, ये आपसे पूछता है, आप ये बताइए कि half of A plus A transpose and half of A minus A transpose, find the value of these two, right? इसकी वैल्यू पूछिए आपसे। बोला सर सिंपली हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ये कहता है कि सबसे पहले आप A को ट्रांसपोज कीजिए, A का ट्रांसपोज कीजिए। तो ट्रांसपोज नॉर्मली रोज जो है वो कॉलम बन जाएंगे या फिर जो कॉलम वो क्या बन जाएंगे, रो बन जाएंगे। ऑर्डर इसका 3/3 है एंड द ट्रांसपोजिशन मैट्रिक्स इज ऑलवेज द ऑर्डर ऑफ सेम 3/3, क्योंकि इंटरचेंज करोगे 3/3 को तो क्या मिलना आपको 3/3 ऑर्डर। तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, दिस इज 0 AB, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, राइट? now what is the condition? The first part A plus A transpose, A plus A transpose। देखिए मैं इन दोनों मैट्रिसेस का क्या कर रहा हूं, एडिशन कर रहा हूं। कंपेरेबल मैट्रिक्स है, दे ऑल आर एडिड, राइट? तो A plus A transpose 0 plus 0 कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड करेंगे, 0 plus 0 0, A minus A, देखिए ना, A minus A 0, B minus B this is 0, minus A this is 0, 0 0 this is 0 and C minus C this is 0, minus B B this is 0, minus C C minus C C this is 0 and 0 0 this is 0. It means this is a zero matrix. This is a zero matrix. Zero matrix is a matrix whose all the elements are 0. आप फिर से देखें, A मेरे पास को मैट्रिक्स दी थी 0 A B minus A 0 C minus B minus C this is 0। हमने उसका ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज कहता है कि आप इसकी सभी रोज को कॉलम में चेंज कर दें या फिर उनके कॉलम्स को किसमें कर दें, रो में चेंज कर दें। मान लीजिए मैं फर्स्ट कॉलम देखूं 0 minus A minus B, मैंने इसका फर्स्ट रो बना दिया। सेकंड कॉलम देखूं A 0 minus C, सेकंड रो बना दिया। थर्ड कॉलम B C 0 जो आपका उसको मैंने थर्ड रो में, ये आपका 0 है। अब ये कहता है कि आप इनको ऐड कीजिए A plus A ट्रांसपोज। तो बोला सर मैंने कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स में कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, 0 0 0 minus A plus A 0 minus B plus B 0, A minus A 0 0 0 0 minus C plus C 0, B minus B 0 C minus C 0 and 0 0 is 0. This is the zero matrix. तो बोला सर मैं इसका हाफ करूंगा तो हाफ भी तो 0 रहेगा, because 0 is multiplied to any of the number, getting the result is what? 0. Nothing will be changed. This is the first part. What is the second part? सेकंड कहते हैं सर आप A में से A ट्रांसपोज को माइनस कीजिए, आप A में से A ट्रांसपोज को माइनस कीजिए। देखिए मैं यहाँ थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, माइनस ऑफ A ट्रांसपोज कर दूं, माइनस ऑफ A ट्रांसपोज कर दूं, तो बोला सर जितने भी एलिमेंट्स माइनस के थे वो कैसे हो जाएंगे प्लस के, और जो प्लस के थे वो कैसे हो जाएंगे माइनस, बिकॉज
यहाँ 3 एलिमेंट माइनस के आपके, राइट, और 3 कैसे हैं प्लस के, तो बेटा ये भी तो माइनस का आएगा, ये भी तो माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका ट्रांसपोज था वो क्या था, 0AB, 0AB माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी। जैसे आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस वाले तो सारे कैसे हो जाएंगे प्लस के, और जो प्लस थे वो कैसे हो जाएंगे माइनस के। अब आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, क्योंकि मान माइनस इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखिए 0 0 फिर से 0, दिस इज माइनस ए माइनस 2a, this is -2b minus b minus 2b, right? This is a plus a 2a, this is again 0 0 0, this is minus c minus 2c, b b 2b, this is c c 2c, and this is 0 0 0, 0 plus 0 2 0 मत कर देना, ध्यान रखना ना, 0 plus 0 2 0 पर 0 रहेगा। अब बोले सर इसका हाफ चाहिए हमें, हाफ ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, तो सर मैं हाफ लूंगा। देखिए आप, इसको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, इसको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। एक बात आपने देखी, ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। देखिए ना, है कि नहीं है? इनकी आ सकते हैं सिमेट्रिक में भी, बट इट इज नेसेसरी that all the diagonal element of a skew symmetric matrix are always 0. Result आपके सामने है। Now we divide by 2 to each and every element because we have to get the half of this matrix. इस मैट्रिक्स को मैं कुछ भी बोलूं, जैसे मैं हाफ करूंगा तो 0 रहना से ये क्या हो जाएगा माइनस a, ये क्या हो जाएगा माइनस b, this is what a, this is again 0, this is minus c, this is b, this is c and this is 0. This is the value of half of a माइनस ए ट्रांसपोज, ये आपका सेकंड आंसर था। अब मैं इसी में आपको 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं, लुक एट द बोर्ड प्लीज। 10th में क्या करवाएंगे आपसे, कुछ मैट्रिसेस आपको दिए हैं और पूछा क्या है कि रिप्रेजेंट दैट द गिवन मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे सर, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, आप करके देख लेना चाहिए। तो फिर सर इसका मैं करूं ट्रांसपोज तो यही आना है, और इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये उठ के थोड़ा चेंज हो जाएंगे एलिमेंट्स, है ना, क्योंकि इसका नेगेटिव आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ये सारे कैसे हो जाएंगे नेगेटिव। तो ऑटोमेटिकली वो कब होता है जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सिमेट्रिक आएगा रिजल्ट आपके पास, और ये कैसा आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे आपको गिवन मैट्रिक्स मिलेगी। आप करके देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, दिस इज द रिजल्ट ना। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड करता हूँ। देखिए 0 0 0 0 माइनस ए 0 माइनस बी 0 a 0 0 0 0 माइनस सी 0 b 0 c 0 0 0, and this is what your given matrix A. This is question number 10, और क्वेश्चन नंबर 10 आपको कंप्लीट सोल्व करना है ऑन द डिपेंडिंग इज दिस थ्योरम एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेसिबल और एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। क्या कहते हैं, ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, इट मींस अगर ये सिमेट्रिक है then A ट्रांसपोज इज A and B ट्रांसपोज इज व्हाट B। नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है सर। तो बोला सर जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर है वही ट्रांसपोज का भी तो ऑर्डर होगा, वही ट्रांसपोज का मैट्रिक्स ट्रांसपोज जब करेंगे उसका ऑर्डर आएगा, क्योंकि ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर तो सेम रहना है, 2/2 तो 2/2 रहेगा, और 3/2 3/3 तो 3/3 रहेगा। देन AB माइनस BA, AB माइनस BA इज, क्या पूछ रहा है आपसे, तो बोला सर एक बात बताओ, ये आपके पास सिमेट्रिक रहेगा या स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा, वो कैसे बताएंगे, हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज AB माइनस BA एंड इट्स ट्रांसपोज। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा कि A माइनस B एंड ट्रांसपोज गिव द रिजल्ट A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो मैं इस कंप्लीट को क्या है, A नहीं मान सकता, इसको B नहीं मान सकता, तो ये क्या हो जाएगा AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज, एंड दिस इज व्हाट B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, एंड दिस इज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज इज B and A ट्रांसपोज इज
A and this is A transpose is A and B transpose is B. अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा AB माइनस BA, AB माइनस BA, AB माइनस BA. आपने इसका ट्रांसपोज किया और इसका नेगेटिव आपको मिला. It means the transpose of any matrix gives the negative result to itself. Then the given matrix is what? Skew symmetric matrix. Then AB minus BA is which type of matrix is this? Skew symmetric. Option A is correct. And the last question, A cos alpha minus sin alpha and cos alpha and A plus A transpose the identity matrix. Then find the value of cos alpha. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास एक मैट्रिक्स दे दी and that equals to any identity matrix. Then you find the value of cos alpha. तो अल्फा की वैल्यू हमें एंगल से मिलेगी वहां से. देखिए क्या कहा है A प्लस A ट्रांसपोज. आपको क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें A दिया है cos अल्फा है ना माइनस sin अल्फा एंड दिस इज cos अल्फा. मैं तुरंत क्या करूंगा A ट्रांसपोज करूंगा तो हो जाएगा cos अल्फा. A ट्रांसपोज क्या होगा बेटा यहाँ से cos अल्फा माइनस sin अल्फा, दिस इज sin अल्फा एंड दिस इज cos अल्फा. देन A प्लस A ट्रांसपोज इज व्हाट? A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है. इन दोनों का मैं सम करूंगा. देखिए cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा, राइट. sin अल्फा माइनस प्लस 0, this is minus plus again 0 and this is cos 2 cos alpha, and that equals to identity matrix of the same order 0 1 1 0. By equality of matrix we can equate the corresponding elements, this equal to this and this equal to this. Then by equality of matrices 2 cos alpha is equal to 1. Cos alpha is what? Half. 10th पढ़ के आए, 11th पढ़ के आए मूर्खों. cos alpha equals to 1, then alpha is cos inverse half. किसके पॉजिटिव वैल्यू cos में हाफ देती है आपको 60 पे. किस पे आता है 60 पे. cos 60 is what? 1/2. Therefore alpha equals to cos inverse 1/2. Therefore what is alpha? pi/3. What is alpha? pi/3. And the option is what? B. The option is what? B. This is your complete exercise depending on the transpose of a matrix. Now we are getting the total description on this complete theorem, that transpose of a matrix, symmetric, skew symmetric कुछ theorem थी उसके बेसिस पे कंप्लीट आपको करवाया. Now the last topic जो आपका था सबसे मेन इंपॉर्टेंट elementary operations, that will be continue in the next video. तब तक के लिए ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो देखते रहें और काम करते रहें. Thank you. Have a nice day.